Good morning dear students, how are you all? So now we are going to enter to our second semester. I hope आप लोग का first semester अच्छा रहा. I hope you all have done your exams very good. Now we are waiting for our results. So let's hope for the best. I know many of you have scored well. So now we'll move on to the next semester, that is our semester 2. So I want to tell you that now onwards we are going to study from our semester 2 book. Okay. So semester 2 book is this. Okay. You all must be having this one. And on your book it looks like same as it was before for the semester 1, है ना. सेमेस्टर 1 की बुक भी आपकी ऐसी दिखती थी, है ना. लेकिन नाउ दिस इज सेमेस्टर 2 बुक. ओके. और इसमें लेसन्स और एक्सरसाइजेस एवरीथिंग इज डिफरेंट. ओके. सो नाउ विल स्टार्ट आवर फर्स्ट लेसन. ठीक है. और इसमें देखो आपको सेमेस्टर 2 यहाँ रिटर्न है ऊपर, यहाँ पे लिखा हुआ, राइट. ऐसे ही आपके पहले वाले बुक में यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा था, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट our first lesson. Take out your book everyone, take out your pencil, erasers, whatever is required, and then we'll start our lesson. Take out page number 9, lesson 1, I went fishing. Okay. Okay, now we'll start reading our lesson. So before that there is one warm up given in this lesson. Okay, can you see here warm up on page number 9? There is one warm up given, है ना. The lesson name is I went fishing. Okay, this lesson is about a boy who went for fishing, and in this lesson we are going to learn a poem. Okay. So before that there is a warm-up exercise I have told you here, right? So we'll do this first. Okay. So there are two pictures given, है ना. The question is complete the names of these activities. आपको दो एक्टिविटीज करते हुए दो पिक्चर्स शोन है आपकी बुक में. आपको बताना है उनको देख करके कि कौन सी एक्टिविटीज है. ओके. So the first question is what kind of activities are these, है ना. ये एक्टिविटीज कौन से टाइप की है. एंड देन टेल द क्लास व्हाट यू नो अबाउट दीज एक्टिविटीज. ठीक है. अब ये जो सेकेंड बोला है ये आपको खुद से बताना होगा. अभी हम लोग क्लास में नहीं है, राइट. सो यू कैन टेल दिस टू योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स. ओके. सो नाउ first we have to fill the blanks given and then we'll discuss what kind of activity is this. Okay. So F blanks, S blanks, 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 G. Okay. Then next one is B blanks, blanks, T blanks, blanks, G. Okay. These two words are given, है ना. These are given in your book and now we have to fill. The boy is sitting with what? उसके हाथ में क्या है? फिश पकड़ने वाला चीज, है ना. कैन यू सी अ बॉय सिटिंग ओवर देयर, है ना. वो एक लेक साइड या एक रिवर साइड बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है? ही इज कैचिंग फिशेस, है ना. And this activity is called as fishing, right? So F I S H I N G, fishing. Is that clear everyone? So what activity is shown in your first picture? It is fishing. Okay. Now in the next one the boy is in a boat, है ना. on a boat the boy is sailing, है ना. क्या कर रहा है वो? एक बोट में बैठ के सेल कर रहा है, राइट. सो दिस एक्टिविटी what we call this activity? Yes, boating. What it is? Boating. Okay. So B O A T I
boating. Okay, is that clear everyone? Okay, so these two activities are given in your book, है ना. We have filled this. आप लोग को blanks दिया हुआ था और अभी आप लोग क्या करोगे, मैम ने ये जो फिल किया है अपने पेंसिल उठा करके अभी तुरंत आपको इसे फिल करना है. ओके, टेक योर पेंसिल एंड फिल दीज ब्लैंक्स गिवन इन योर बुक. Okay, I'm giving you 2 minutes. You can do it right now. Everyone do it. Done? Okay. Now I hope you all have done it. है ना? So now we'll move on to the question. What kind of activities are these? क्या पूछा उन्होंने? What kind of activities are these? मतलब दो ऑप्शंस दिए हैं आपको. क्या क्या दिया है? आउटडोर, इंडोर. ओके, आपको क्या है, दो ऑप्शंस दिए हुए बुक में और अब आपको ये बताना है कि फिशिंग एंड बोटिंग, है ना. फिशिंग और बोटिंग आपके आउटडोर एक्टिविटीज है या इंडोर एक्टिविटीज है, आपको ये बताना है. ओके, सो सिंपली इट इज क्लियर नो. फॉर फिशिंग एंड बोटिंग वी गो आउटसाइड ओनली, या आप अपने घर के अंदर करते हो? नहीं, राइट. फॉर फिशिंग एंड बोटिंग यू हैव टू गो टू अ लेक और अ रिवर, है ना. और लेक और रिवर आपके घर के अंदर तो नहीं होते. और जो एक्टिविटीज़ हम घर के अंदर कर सकते हैं हम उन्हें इंडोर एक्टिविटीज़ कहते हैं. और जो घर से बाहर जाके करना पड़ता है उन्हें हम क्या कहते हैं? आउटडोर एक्टिविटीज. सो फिशिंग एंड बोटिंग आर आउटडोर एक्टिविटीज. सो यू कैन टिक ऑन आउटडोर. आपको भी बुक में दो ऑप्शंस दिए हुए हैं, है ना, इंडोर और आउटडोर. तो आपको इसमें आउटडोर पे टिक लगाना है. ओके, इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. So now we'll move on to the poem. Okay. So in this poem, we are talking about a boy who went for fishing. Okay. अब उसने जो फिशिंग पे जाकर के जो कुछ भी किया, उसकी पूरी एक्टिविटी, पूरे दिन का उसने जो कुछ भी किया फिशिंग पे जाकर के, उस चीज़ के बारे में उसने एलाबरेट किया हुआ है किसमें? पोएम. ओके, सो आई विल रीड इट वन बाय वन, है ना. एक एक लाइन मैम रीड करेंगी, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द पोएम इन होल एंड देन आई विल एक्सप्लेन. ओके, so look into your book everyone and keep your finger where ma'am is reading. Fishing was such fun out in the sun. Don't go early, don't go late. To catch the fish, I took some bait. Then turn your page, take out page number 10 and see. Caught 8 fish to put in my pail. 7 were fine, but the 8th had no tail. Took my catch home. What did mother say? Thank you, my dear boy. I will cook them with some soy. Okay, so this was a poem, and now I'm going to read one by one line, and then I'll explain. Okay, so first line is, fishing was such fun out in the sun. The boy is saying that fishing was such fun out in the sun. फिशिंग करने में उसको इतना मज़ा आया बाहर धूप में. एंड इट वॉज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, यू नो. हल्की सी धूप थी, बहुत तेज़ नहीं थी कि उसको बहुत परेशानी हो, लेकिन बाहर की धूप इतनी कन्वीनियंट थी उसके लिए कि उसको उस धूप में बाहर जाके फिशिंग करने में बहुत मज़ा आया. उसने ये कहा. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट लाइन. डिडंट गो अर्ली, डिडंट गो लेट. डिडंट गो अर्ली, डिडंट गो लेट. ना मैं बहुत जल्दी गया, ना मैं लेट गया. मैं एकदम परफेक्ट टाइम पे गया जब क्लाइमेट भी सपोर्ट कर रहा था. दैट इज़ बहुत धूप भी नहीं थी और बहुत ठंड भी नहीं थी, है ना. नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल क्लाइमेट था. उस वक्त मैं बाहर गया और मैंने फिशिंग की और मुझे बहुत मज़ा आया, ऐसा वो बताया. ओके, देन टू कैच द फिश आई टुक सम बेट. और मैंने फिशिंग के लिए I took some bait. Okay, and what is a bait?
बेट क्या होता है? चारा। ओके, चारा क्या होता है फिशिंग के लिए? वर्म्स, है ना, स्लाइटली स्मॉल पीसेस ऑफ फ्लैश, ये सब हम यूज कर सकते हैं, है ना। सो फिशिंग के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? एक तो आपको फिशिंग करने वाला वो स्टिक जो होता है वो चाहिए होता है, उसके अलावा आपको क्या चाहिए? बेट। एंड व्हाट इट इज? बेट इज चारा, है ना। चारा क्या होता है? फिश को अट्रैक्ट करने के लिए, फिश को ट्रैप करने के लिए वी पुट सम वर्म्स और स्मॉल पीस ऑफ फ्लैश, है ना। उसके बाद हम कांटे को पानी में डालते हैं और कांटे पे आकर के फिश क्या करता है? वो फ्लैश या वर्म को खाने के लिए आता है, लेकिन वो जो कांटा होता है वो उसके नेक में फंस जाता है और हम इस तरह से फिश को पकड़ लेते हैं, राइट। सो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ फिशिंग। और वो लड़का जो बॉय है पोएम में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो बच्चा यही बोल रहा है कि फिशिंग वॉज सच फन आउट इन द सन, didn't go early, didn't go late, to catch the fish, I took some bait. वो बच्चा कह रहा है कि फिशिंग करने में उसे इतना मज़ा आया क्योंकि क्लाइमेट भी बहुत अच्छा था, वो बहुत धूप में भी नहीं गया, बहुत ठंड में भी नहीं गया, एकदम सुबह सुबह जाता तो उसको थोड़ा ठंड लगता है ना, ठंड लग रही होती, और अगर एकदम दिन में जाता तो तेज़ धूप होती, राइट। सो ये सब कुछ भी नहीं फेस करना पड़ा उसे, उसने बहुत एंजॉय की उसकी फिशिंग, और उसने साथ ही अपने साथ चारा भी लेकर गया था ताकि वो फिश को कैच कर सके। ओके, सो नाउ विल रीड टिल दिस ओनली, है ना। यहाँ तक ही मैम अभी आज रीड करके आपको एक्सप्लेन कर रही हैं, क्योंकि एक साथ आप लोग इतना सारा नहीं समझ पाओगे। नेक्स्ट डे विल रीड द अनदर स्टैंजा एंड विल कंप्लीट द पोएम। ओके, सो this is it for today and we'll see in next class whether he caught fishes or not, है ना। अब हमें पता नहीं, वो तो गया, उसने तो कहा उसे बहुत मज़ा आया और वो फिशिंग के लिए चारा ले गया तो उसने इतना बताया, लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये तो हमें पता ही नहीं है, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में हमें पता चलेगा कि उसने फिशेस पकड़ी कि नहीं, चारा उसके काम आया कि नहीं, उसने कितने फिशेस पकड़े, राइट। ये सब हमें नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा। So today once more I'm going to read this and we'll wind up. Okay, so look into your book everyone. Fishing was such fun out in the sun, didn't go early, didn't go late, to catch the fish I took some bait. Fishing was such fun out in the sun, didn't go early, didn't go late, to catch the fish I took some bait. Okay, so this is it. अब आप लोगों को क्या करना है? What you have to do is you have to read the poem as far as ma'am taught you, and you have to find out the difficult words also, and you have to learn them by yourself. Okay, after completing the poem ma'am will give you the difficult words, but before that try to find out by yourself and try to learn them. Okay, for example, this bait word is new for you, right? आपको इसका मीनिंग भी नहीं पता था, ना आपको इसका स्पेलिंग पता था, राइट। सो अब ये एक न्यू वर्ड है आपके लिए, इसे लर्न करो, इसकी स्पेलिंग्स याद करो, राइट, और इसे 5 to 10 टाइम्स लिखो तो लर्न हो जाए इजीली, राइट, और इसकी मीनिंग को भी समझो। बेट क्या होता है? चारा, राइट। सो दिस इज इट फॉर टुडे। कीप रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग द पोएम as far as ma'am taught you. Okay, lesson 1, I went fishing. Okay, good day everyone.